Hello, good morning, friends. I am Rajinder Jatana, your math teacher on this side. Now, I told you that I'll come back with my notes on polynomials and rational expressions. Here I am. Now, look here. These topics are used for 9th, 10th, SSC, railways, banking, defense, UPSC, and MBA, etc. So it is beneficial for all. Now, question arises that you should know from A to Z. Although some of you may be knowing everything about polynomials, but the picture may not be clear to some of the students. So I'll start from the beginning. Number one is, look here, this is constant. Constant is a number which never changes. It is a symbol having a fixed numerical value. Fixed numerical value. Supposing 4 is there, ये नहीं है कि 4 की वैल्यू रात को कम हो जाती है, सुबह ज़्यादा हो जाती है. हवाई जहाज में जाओ कुछ अलग हो जाती है, ज़मीन के नीचे जाओ अलग हो जाती है. यही की यही रहती है. It is always constant. Same way these numbers -2, 7, 5/9, √3, 0, pi are 22/7. They are all constants. Their value never changes. Secondly, what is variable? Variable is a symbol which may be assigned different numerical values. उसमें देखो फिक्स है और इसमें डिफरेंट वैल्यूज. कभी कभी आपको मालूम है x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, किसी सेम क्वेश्चन में 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है. सो इट इज चेंजिंग. वेरिएबल मीन्स whose value is not fixed, it is different numerical value. This is known as variable. So x, y, x, y and z, they are variables. Or it, for that matter, it can be any letters of English can be taken as a symbol for variable. Now let us go to next, algebraic expression. Algebraic expression is a combination of constants and variables. अभी मैंने आपको कांस्टेंट भी बताया है, वेरिएबल भी बताया है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन along with mathematical operations. क्या क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. And this is known as algebraic expression. So there should be constants, there should be variables, and there should be mathematical operations. It becomes a algebraic expression. Now look where 2x plus 5. इसके अंदर कांस्टेंट हैं 2 और 5. x is variable. ऑपरेशन कौन सा है? प्लस. लेट अस गो टू नेक्स्ट. इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, x है. ये कांस्टेंट है -3 और x स्क्वायर के सामने कोई नहीं है. कांस्टेंट जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा एक होता है. सो हेयर द कोफिशिएंट इज 1. 5y -3. 5 and -3 are constants. Y is a variable and operation is minus. So इसके अंदर 3 चीज होती है. कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होता है. सो जिसके अंदर ये तीनों होती हैं, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस गो फर्दर. टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. Several parts of an algebraic expression separated by plus or minus.
साइंस आर कॉल्ड दी टर्म्स ऑफ दी एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे 3x + 5 है, 3x भी टर्म है, 5 भी टर्म है, और ये यहाँ से कनेक्टेड हैं। प्लस बीच में आ गया तो या माइनस बीच में आ जाएगा। नो लुक हियर, 2x² - 3x + 1। देखो ये टर्म है, बीच में साइन आ गया, टर्म है, फिर ऑपरेशन का साइन आ गया 1। यही लिखा हुआ है सेवरल पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन कौन से पार्ट हैं इसमें? 1 2 3, सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। इन दोनों की को कौन सेपरेट कर रहा है? माइनस। और इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? प्लस। दे आर सेपरेटेड बाई द साइंस। सो दीज 3 आर कॉल्ड टर्म्स। In this case 3x + 5. Look here, this term and this term, they are separated. बीच में कौन आ गया है? प्लस। इसकी वजह से सेपरेशन हो गया। Now, what are coefficients of a term? Coefficient is numerical factor of a term. This is called coefficient. जैसे 5x² है, 5 और x² ये दो फैक्टर्स हैं। 5 जो है न्यूमेरिकल है, इसी को ही कोफिशिएंट बोलते हैं। नो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1। पहले म्यूजिक का सिस्टम मोनो सिस्टम होता था, बाद में स्टीरियो आ गया। मोनो मीन्स 1 containing 1 non-zero term। टर्म क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। ओके, अगर दो टर्म्स हैं, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म, 2 terms containing 2 non-zero terms, it is called binomial. Similarly, let us go to next, trinomial। Tri means 3, tricycle, 3 पहिए वाला साइकिल। Trinomial containing 3 non-zero terms. Now let us go to next term. This is like and unlike terms. 2 or more terms which have same variable factors are called like terms. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर, एक तो x है, एक y4 है, एक x है, y4 है, तो ये लाइक टर्म्स होगी। कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, वेरिएबल की टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y4 है, यहाँ भी y4 है, सो दे आर लाइक। और अगर लाइक नहीं है तो क्या होंगे? अनलाइक। 2 or more terms which have different variables are called unlike। अब देखो यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे 6x3 हो गया, यहाँ 7x4 हो गया। वेरिएबल की पावर बदलती जा रही है, सो दे आर अनलाइक टर्म्स। सो जिसमें वेरिएबल चेंज होता जा रहा है, उसी की वजह से दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। लेट अस गो फर्दर। नाउ वी विल कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। No. Poly means many. Nomial means term. Many terms हों जिसके अंदर। So an algebraic expression in which variables have only non-negative integral powers is called nominal। जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स या तो 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। कहने का मतलब है होल नंबर्स होते हैं। सो दीज पावर्स आर ऑलवेज होल नंबर। इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज होल नंबर्स। नाउ दिस इज द डेफिनेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही जिसमें वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर हो तो उनको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं।
they are called polynomials. Now, degree of polynomials. अब अगर एक वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं then degree of the polynomial is highest value of sum of the powers of the variable. अब मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इकट्ठा है तो डिग्री 4 बन जाएगी. सो पावर ऐड हो जाती है. अगर दो दो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं तो उनमें वेरिएबल की पावर को ऐड कर देते हैं. दैट बिकम्स द डिग्री. नाउ लुक हियर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. अगर किसी की डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर के अंदर लाइन छुपा हुआ है. अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो लाइन बन जाता है. क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स 2. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. क्वाड जो होता है स्क्वायर होता है, और स्क्वायर में पता है आपको, जैसे उसकी एरिया निकालते हैं एक्स स्क्वायर या साइड स्क्वायर तो डिग्री 2 होती है. नेक्स्ट क्यूब, क्यूब में कितनी होती है डिग्री? 3. उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 चीज़ें हैं, उसमें 3 डिग्री बन जाती है. सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक. और अगर डिग्री 4 हो जाए तो देखो क्वाड्रेटिक में 2 है तो इसका मतलब 2 क्वाड्रेटिक हो गए, बाई क्वाड्रेटिक. By means 2. A polynomial of degree 4 is called biquadratic. Now let us go further. Zeros of a polynomial. जो zeros होती हैं वो x की वैल्यूज होती हैं. These are the values of the variable. x अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को हम 0 कह देते हैं. if which makes the polynomial equal to 0. अगर हम उसके अंदर x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू लगा देते हैं पॉलिनोमियल में और आंसर 0 आ जाता है, then it becomes 0 of the polynomial. Let us take an example. If we put x equal to 2 in the polynomial px is equal to x minus 2, then x की जगह 2 लगाओ, यहाँ पे p2 बन गया, 2 minus 2 0. So this is called the 0 of the polynomial. Now last topic is rational expression. Polynomial divided by polynomial. PYQ shape. A rational expression is a ratio of 2 non-zero polynomials. अब देखिए ये हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल. वहाँ पे जो रैशनल नंबर होते थे नंबर डिवाइडेड बाय नंबर होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर होता है. यहाँ पे पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल polynomial or rational expression. So these are, then you must write them in the lowest form. अगर मान लो ऊपर और नीचे कोई फैक्टर कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा. जैसे मान लो 8/10 होता है, 2 कॉमन होता है, it becomes 4/5. That is the lowest form. Okay, I hope the concepts of polynomials and rational expressions might be clear to you. So share this with your friends so they are also benefited, and like the videos and subscribe them. Thank you very much. So nice of you. Good day.